today's class, we are going to study the syllabus. So we are done with the orientations and everything, getting to know the syllabus and everything, getting to know me. Obviously, if this is your first day, you've not missed much. This is your last day, well, you're gonna learn a few things here today, inshallah. Uh, so obviously we have three category of students sitting here in the class today. Was IGCSE first language भी है, second language भी है और zero और इसके साथ 1 1 2 3 भी है. So syllabus सबका अलग अलग है. But in a very quick way, I'm going to go through the syllabus. I'm going to discuss the similarities and the differences, and after that I'm going to discuss the marking scheme as well. Right? Because marking scheme करना बहुत जरूरी है समझना. और मार्क्स स्कीम को लोग नहीं देखते, एग्जाम रिपोर्ट्स को लोग नहीं देखते. These are the one of the two most hot documents ever, right? So मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है आपके लिए. उसको भी मैं खोलूंगा. और मैं the first thing I'm going to do is I'm going to teach you in today's class how to make notes, how to understand the syllabus. So I have done a lot of writing myself over here, as you can see. माशाल्लाह तबारकल्ला. But I am going to also teach you कि यार आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉलो करने चाहिए. What if whenever you get stuck, which document to go? Obviously, I'm going to create our own Bible as well over here, when I'll be giving you a lot of things to go back to. But if you get stuck in any syllabus, in any subject, I'll say which documents are there to help you out. ये मैं आपको आज की क्लास में ये भी गाइड करूंगा. Because obviously I want you to be independent. Even if you say tomorrow, सर मुझे सरदार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने तो मैं खुद पढ़ लूंगा, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. I'm not going to be, thinking over your bacha chala gaya. Nahin, it's very good. I want you to be independent, right? Depend on yourself. All right. So start with 1 1 2 3 का syllabus, right? So I've told you in the last class, दोनों के जब one first language हो, second language हो, या O levels हो, all of you have got two papers, right? So in these two papers, paper one is always reading for IGCSE and 0500 and 1123, and there are different parts. So 0500 जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है, उसमें इस बार मेजर चेंज आया है. मेजर माइनर चेंज आया है, लेकिन चेंज आया है फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो उस पर भी हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है, उसी से मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट योर ओन डॉक्यूमेंट्स. So let's go through. I'm going to go through a few documents here. First of all, I have 1 1 2 3 syllabus in front of me. Paper one reading, paper two reading है, marks 50, 2 hours, and weightage is 50%. अच्छा, be it any subject, you need to first of all ask your teacher अगर वो नहीं बता रहा है कि यार सर इस पेपर की वेटेज कैसी है. So for example 0510, अभी हम उसको भी देखेंगे. I'll take you to 0510. So 0510 for instance has got paper one's weightage to 70%. Now what does this weightage means? Weightage का मतलब ये है कि if somebody does well or does not do well in this paper, it's a make or break situation. So here reading and writing पेपर है, आपकी exercise 1, exercise 2, 3, 4 जो है 4 exercises होती हैं आपकी reading की, और 5th और 6th होती है writing की. If you get a good grade in this, so there is like 90% chance कि अगर आपका A आ गया है in paper 1, तो आपका पूरे पेपर 2 में भी अगर आपका इसमें बी भी आ जाए तो आपको इट डजंट रियली मैटर, वो ए स्टार ही बनेगा इंशाल्लाह आपको. So this is what weightage means. So you need to know before you are attempting any paper of O levels कि यार इसका weightage क्या है. ये बड़ा मैटर करता है, ये इसका लोग इसको समझते नहीं है. सो यहाँ पे मैं दिखा दिया कि मेरे पास जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें और 1 1 2 3 में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है. यहाँ पर आपको अच्छी वेटेज चाहिए होगी 0510 में. सेक्शन ए इज कॉम्प्रिहेंशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है जी, इसमें आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. ये सब कुछ जो है इज रिटन इन द सिलेबस, सब वहां से कॉपी हुआ हुआ है. नथिंग इज रिटन बाय माय ओन सेल्फ. कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से लिखी हुई हैं. मिनिमम नैरेटिव ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे बोलो, नैरेटिव टेक्स्ट होता है which means that it has very entertaining, it's going to be very lively, you won't get bored in it. इसमें 20th और 21st सेंचुरी से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है तो अगेन इट रियली मैटर्स. इसमें आपकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग को
टेस्ट किया जाएगा जब हम पेपर पे आएंगे इन डिटेल, तो बताएंगे कि एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। मिनिमम 1 mark, maximum 3 marks. This document will be uploaded on the drive wherever you are, so nothing to worry about it. If you want to take screenshots in the meantime, be my guest. I don't mind it as well, or I'll give you some time to at the end to take the screenshots. Probably a lot of you might be watching this on the my YouTube channel as well, so I'll give you, you can pause it and take a screenshot over there. Then we have use of language. That's question number 2. It's also based on text A. So we have got only two text in the entire paper for 1123, text A and text B. Short question answers, according to the author's use of language and effect he creates. We have to understand uh, what does literal and figure of speech means actually over here. अब figure of speech में आपके metaphors भी आ जाते हैं, simile भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। अब समझना होता है कि कब वो बोल रहा है कि भाई अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, मतलब तमीज बच्चों वाली अच्छी वाली एग्जांपल। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि क्रोकोडाइल टीयर, crocodile's tear, right? So, has anyone ever seen crocodile's tears in reality? I'm not talking about the poor Kyasu, but I'm talking about crocodile's tears. So nobody has ever seen crocodile's tear ever practically, but we all know it means fake tears. So there is this literal meaning of it, and then there is their figurative meaning of this as well. You have to realize from the question that where does the crocodile's tear means के ये आपकी असली में क्रोकोडाइल जो है वो रो रहा है या नकली में रो रहा है, मतलब ये फुप्पो रो रही है, आई मीन मतलब के फेक टीयर्स है। सो इट्स लाइक दोज, राइट? सो हाउ इट्स दिस यूज ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली, याद रखिएगा। और ये दिस इज माय फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल टाइम है, मैं मुझे बहुत पसंद है पढ़ाने में, एज यू कैन ऑलरेडी सी। फिर हमारे पास समरी और शॉर्ट रिस्पॉन्स टास्क सेक्शन बी होता है। टेक्स्ट बी आएगा आपके पास सेक्शन बी में, उसमें यू हैव टू डू अ समरी। 550 to 600 वर्ड्स का टेक्स्ट होता है, उसको स्क्वीज करके आपको 150 वर्ड्स में लेके आना होता है। 1123 में और कम वर्ड्स होते हैं इसके अंदर। अभी तक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है मोस्टली सिमिलर ही है आपका। तमाम चीजें जो इसमें लिखी हुई है सब सिमिलर ही है, ये सब आपको 110500 में भी आती है। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा ये सब चीजें, ये भी आता है और ये भी आता है, बस क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है। और समरी भी ऑब्वियसली आते हैं। तो समरी में भी ये होता है, मार्क्स जो है आपके रीडिंग और राइटिंग दोनों में मिलते हैं आपको। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं as I move on with this course, याद रखिएगा कि वेर एवर यू हेयर द वर्ड एक्सप्लिसिट एंड कंटेंट, जहां पर भी वेर एवर यू गेटिंग मार्क्स ऑन दीज टू, these basically are your jingle bells, यानी कि यहाँ पर जी आपको इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर मिलेंगे, परेशानी नहीं होगी। And wherever you get the word implicit and use of language, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि आपके जी यहाँ पर ये अलार्म बेल है। So you have to टारगेट द क्वेश्चन। यार ये मेरा टारगेटिंग क्वेश्चन है। क्यों टारगेटिंग क्वेश्चन है? मुझे यहाँ पे अगर 10 नंबर मिल रहे हैं कंटेंट के, तो दिस इज सपोज टू बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माय लाइफ। आई नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे आई विल स्कोर 10 out of 10। अभी कैसे होगा, कब होगा, वो बात की बात है, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अह, फिर आता है शॉर्ट रिस्पॉन्स टास्क। ओवर हेयर शॉर्ट रिस्पॉन्स टास्क was never asked anywhere in the entire syllabus ever. No, I'm not lagging, आपके पास नेट का मसला होगा probably। सो जो ये है जो कभी दिस इज वेयर यू आर सपोज टू बी समवन एल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, दे वुड से इफ द टेक्स्ट इज ऑल अबाउट सर जाहिद's journey to becoming a teacher, in becoming a teacher. So the question would be, imagine you're Sir Zahid and you've been invited to a podcast. The interviewer asks, when did you decide to become a teacher? And then you will become Sir Zahid and answer from the Sir Zahid's perspective, but taking each and every detail from the passage.
सो ये बन के आपको करना होता है. इट्स अनदर वेरी फन क्वेश्चन. सो दिस इज इट फॉर द सिलेबस टू बी ऑनेस्ट. इसमें कोई इतनी परेशानी की बात ऐसा है नहीं. लेट्स कम टू द पेपर वन ऑफ 0500. Now here is where there. अच्छा, मैंने इसको पहले से चेंज क्यों नहीं किया? Because there are a lot of changes that have come in this, and I am going to make a detailed video on this as well, which you can see later on कि मैं इसमें हुआ क्या है. And I am going to actually share कि हुआ क्या है इसके अंदर. So initially what used to happen कि question one होता था हमारे पास 1A to 1F. 1A to E is comprehension task which is equal to, I'll say, which is equal to क्वेश्चन नंबर वन ऑफ 1123. वहां पे होता है वो 16 मार्क्स का, यहाँ पे होता है 15 मार्क्स का. तो व्हेन वी स्टडी टुगेदर टुगेदर यू नीड टू नो भाई हमें साथ 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 क्यों पढ़ा रहे हैं हमें. सही है. सो दिस इज इट. एंड अगेन बस इसका मसला है, मार्क्स का डिफरेंस है, वेटेज सेम ही है. राइट. Again, main implicit or explicit together, minimum 1 mark, maximum 3 marks, and that's about it. Summary जो आपका क्वेश्चन नंबर 3A है is basically now 1F. अच्छा, अब ये 1F से भी चेंज हो गया है. अब ये क्या हो गया है, जरा इसको देख लेते हैं. How has the change impacted? I have had I've opened so many documents. I don't know which one is the right one. Specimen paper one, ये yes. सो एज आई सेड कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इसमें बिफोर एंड आफ्टर को जरा देख लेते हैं साइड बाय साइड. सो क्वेश्चन वन आई टोल्ड यू वाज सपोज टू बी अ कॉम्प्रिहेंशन टास्क. अभी भी वो कॉम्प्रिहेंशन टास्क ही है. यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. the 1E तक जो है 1F भी is all about 1F is still comprehension task. So अगर कोई चेंज इसमें आई है तो बेसिकली वो ये आई है कि यहाँ पर जो 1A to E है, now it has become 1A to F and it's a comprehension task altogether. ठीक है. आई एम नॉट राइट नाउ डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कम इन द एग्जामिनेशन. उससे मैं बात नहीं कर रहा. वी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस राइट नाउ. राइट. सो मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? लैगिंग तो सही चल रहा है. ठीक आ रही है, ठीक आ रही है. सॉरी. ऑलराइट. सो देन वी जो 1F था पहले, which used to be some rewriting, now this has become question number 2. And rest of the details are same. As you can see, it has 120 word over here as well. It has 120 words over here as well. Same marks available for reading and writing. 10 and 5 same for reading and writing as well. So कोई इसमें ऐसा change नहीं आया. It's just that they change the number of questions. So the maximum change we have got is question number 2. So this is equal to obviously question number 3A और 1123, जो वहां पर आता है 20 मार्क्स का. वहां पे 10 और 10 की डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 10 और 5 की डिस्ट्रीब्यूशन है. Then question number 2 has always been used, famous for use of language. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2A के बाद 2B जो है राइटर्स एटीट्यूड, तो अभी भी यही चल रहा है इसके अंदर. और इसमें जो हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बी है, बी चल रहा है. तो राइट नाउ वी हैव टेक्स्ट बी फॉर यूज ऑफ लैंग्वेज है इसमें, और चल रहा है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका. ये क्वेश्चन नंबर 2 बी कहलाएगा. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 which this अब this basically right now has become question number 3. और एक एडिशनल क्वेश्चन में ऐड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2B, जो भी यूज ऑफ लैंग्वेज ही नजर आ रहा है मुझे एज वी स्पीक. तो क्वेश्चन नंबर 3 को अलग से पूरा किया हुआ है इन्होंने. यूज ऑफ लैंग्वेज पूरा सवाल रखा हुआ है एज ऑलवेज. और जो हमारे पास पहले होता था एक्सटेंडेड राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वो अब हो गया है क्वेश्चन नंबर 4. So as you can see, not a lot has changed. There has been a slight uh,
tweaking that I say over here जो हुई है, नथिंग मेजर टू बी ऑनेस्ट। और एक सवाल और ऐड है, वो पेपर वन में है, वो पेपर टू में भी दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज इट फॉर द पेपर। सो व्हाट यू हैव अगेन इज कॉम्प्रिहेंशन टास्क। To sum it up, comprehension task in question one. Question two is your summary, उस अलग कर दिया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। और उसमें एक सवाल थोड़ा सा उन्होंने एडिशनल ऐड कर दिया है, राइटर्स, ये आप दिखाता हूँ आपको मैं, इन्फ्लुएंस का, विच इज ऑल्सो इक्वलेंट टू द यूज ऑफ लैंग्वेज ही बोलूंगा उसको तो मैं। इट सेज असेस द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लोनिंग ऑफ endangered एनिमल। एटीट्यूड की बात हो रही है, तो दिस माइट बी यूज ऑफ लैंग्वेज, इट माइट बी सिंपल taking your information from text as well. I personally believe that this is going to be a very easy 5 marks to score. So ये explicit भी हो सकता है, ये implicit भी हो सकता है, it can be either, right? Or it can be use of language as well, but I personally believe ये आपको straight forward इसमें points मिल जाएंगे। पॉइंट तो इट्स गोना बी इजी। 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स के मेजर मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि फॉर 3 मार्क्स हाउ आर वी गोइंग टू गेट 5 मार्क्स। वो जब मैं पढ़ाऊंगा सवाल तब उसकी डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू पेपर टू। अब पेपर टू जो है वो 1123 और 0500 का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ द थिंग इज कि जो नया आपका पेपर है उसमें इन्होंने एक छोटा सा सवाल एक्स्ट्रा दे दिया शुरू में, ये पहले नहीं आता था। एंड इट सेज रीड दिस एक्सट्रैक्ट, use your own words to evaluate Jazz attitude to work, give details to text to justify your work। एटीट्यूड टू वर्क, अगेन यूज ऑफ लैंग्वेज ही बोलूंगा उसको मैं। अब आप एक बात देखें, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 1123 और 0500 के स्टूडेंट से। रीडिंग का पेपर और क्वेश्चन नंबर 3 आपने 4 देखा 500 का इज अबाउट राइटिंग। उसमें भी 2 A B C D और डिटेल्स बहुत लंबी हैं। आई विल गेट इनटू दिस सम अदर स्कूल। यस, इन 0510 उस पे मैं इसके बाद आऊंगा बिल्कुल। बिकॉज ये शुरू की एक क्लास जो होती है फर्स्ट क्लास, दिस फर्स्ट क्लास इज अ बिट मिक्स्ड अप। बच्चा बोला यार मैं क्या, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, बट इसके बाद एवरीथिंग इज सिमिलर, राइट, टिल दिसंबर एटलीस्ट। तो आज की क्लास बेयर कर लें। आई नो 0510 विल बी फेल्ट फीलिंग लेफ्ट आउट, सो डोंट वरी, इट्स जस्ट फॉर टुडे। और इसका डिटेल आपको जो है एनालिसिस भी पूरे सिलेबस का मैं आपको अलग से दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। So when it comes to this, you see, it's all intermingled. So what used to happen before was, बच्चों, that students who were not good at reading, they used to get uh, एक cheat code मिल जाता उनको ना, they used to get easy marks and get ready very easily, बड़ी जल्दी ready होते थे। They used to get, you know why? Because they knew कि भाईजान आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे आराम से इसमें। अब आप देखिए, if you are bad at reading, you are going to struggle in the reading paper and in the writing paper as well। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 0500 की, बट दिस इज एन एडिशनल क्वेश्चन इज देयर, बट 1123 वाले उछल लेंगे, बोलेंगे यार अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा। तो बॉस ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 1123 का दिख जाए मुझे कहीं पर, 112322। So you see over here what how the paper comes. The paper ऐसे आता है कि they ask you to write a speech, letter in this is the first question, दोनों में सेम है, ओके। सो लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, ईमेल, ये आपके पास आते हैं 5 इन योर 1123 एंड 4 के टेक द ईमेल आउट इन योर 0500। ठीक है, अच्छा सिमिलर टॉपिक्स आते हैं उसमें भी, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर। यू सी ओवर हियर बिफोर हाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन, पेपर है, ओ क्वेश्चन आया लिख दिया, तो मसला ही नहीं है। 200 खत लिखना है लिख देते हैं, अब वो खत लिखना है लिख देते हैं। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर हियर इज दैट यू गेट टू टेक्स्ट, एंड फ्रॉम दिस टेक्स्ट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स which you can use in your writing. You cannot write any detail that is not from the text। अब ये बड़ी परेशान कौन बात हो गई है भाई। पहले से चलती चलती जिंदगी आराम से, कोई टेंशन ही नहीं, खुद से लिख दिया। अच्छा, दिस इज राइट नाउ
बेटा आपका कोड आप मुझे बताएंगे, हाउ वुड आई बी एबल टू टेल यू व्हाट योर कोड इज? यू नीड टू गो एंड you need to go and ask the school. If you're private, I will advise you by the end of the class. Uh, we are going to do all of these. We're going to do first language, we're going to do second language, we're going to do O levels 1, 1, 2, 3. हम तीनों पे काम करेंगे. Don't worry about it. I don't study in so आप 1, 1, 2, 3 पे जाना simple. IGCSE बच जाएगी फिर. जी जी मिस आयत बोलिए, फरमाइए. ओ अच्छा, आपने बोल दिया. But you need to go for 1, 1, 2, 3 simple. Alright. But for 0500 जिसके हम मेजर पासे पे करेंगे, और आपको मैं बताऊं, आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग because this will be on it should be on the record. All of the last year we did past papers from 0500 or this is, you see these text, these are baby text kuchi kuchi ku. We did papers from 0500 in the last years, and I'll tell you how the paper of 0500 comes. जो ये ऐसे का आता है, क्योंकि आता वो ये ना, मैंने इतना बुरा बेचारे बच्चों का हाल किया, इतना बुरा बच्चों का हाल किया कि आई कैन नॉट टेल यू. That you see over here, this is the text that comes for 0500. अच्छा, this again is a very कूची कू किस्म का 3-4 पैराग्राफ का. वहां से आप देखा ना, एक सिंपल ब्लॉक था. हमने जो की हुई प्रैक्टिस है उसके अंदर तो 8, 10, 12, 15 दो पेज के टेक्स्ट, एंड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड देन यूज इट, इट जस्ट blew people's mind. I got so many dropouts in the entire year. बच्चे बोलते थे यार सर ये हो ही नहीं रहा, ये पढ़ाना नहीं आता, इसको नहीं आता. बट दोज हु सर्वाइव्ड, आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग, दोज हु सर्वाइव्ड, when they went to the paper, they said, "Sir, ये मतलब was it this a bloody joke?" It was a literally joke for them. क्योंकि all those students who were doing those past papers since long, और उनके लिए तो मतलब it was so easy. Why? Because they had practiced papers that had text like anything, man. That had text like, I wish मैं थोड़ा ये इस तरह के टेक्स्ट, एक टेक्स्ट, ये दो टेक्स्ट पढ़ने के बाद ये तो 1 2 है. 2 2 का 2 3. You see this? These again are baby, ये देखो इस तरह के लेंदी टेक्स्ट होते थे. And these again are short text that I'm showing you. I in my notes they are lengthier text. Why? Because beta, at the end of the day, it's just not about grade. तो आई जाएगा ना, grade is a byproduct. We have to make you good in a language, right? And that can only be done when you are under a very rigorous training. फिर उसको आसान चीज आसान लगेगी, तो सेकंड लैंग्वेज वाले उसको तो बिल्कुल ही बोलेगा यार मैं तो पता नहीं पढ़ क्यों रहा हूँ. सही है. Acha, Abhi, again, all the questions regarding May, June, October, November, I'm going to discuss a little later in the class. Right now, let me get done with this, right? तो यही हमारा भाई 0500 में फिर बस जो है बाकी Japan scored. Are you serious? My God. Okay. So, yeah, I just got the update. Right. So this again is going to be a very interesting paper. And the reason is कि इसमें you'll be asked to write not by your own free will, but you'll have a little limitations and let's say directions. I'm going to discuss with you the pros and cons. I get so many new students right here as well. वैसे मैंने मई जून अक्टूबर नवंबर मैं आपको अपने YouTube चैनल भी शेयर कर दूंगा, उस पर तमाम चीजें हैं और रिकॉर्डिंग जो है पोर्टल में भी अवेलेबल है. So you get everything what I've done, but at the end of the class, just for the sake of your own mental peace, I'm going to go through it again, right? So तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे, वो भी इसको देख लेंगे. So text, paper 2, section A is letter, आर्टिकल, स्पीच, ईमेल, रिपोर्ट. ये लेजर बोलता हूं मैं इसको, लेजर. दिस इज फॉर योर 1 1 2 3, और टेक द ई आउट. दिस इज फॉर 0500. सो ये सब आते हैं इसके अंदर, एंड यू हैव टू डू इट. एंड कॉम्पोजिशन वाला भी बिल्कुल सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता पेपर के अंदर. एंड दैट्स हाउ सिमिलर द पेपर्स आर. फॉर 0510,
जरा सा मैं उन पे बात कर लूं, बिकॉज उनका तो बड़ा सिंपल है. दे गेट फोर काइंड स्मॉल comprehensions in exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4. These are all reading based exercises. And then you come to exercise number 5, where there is always an informal email. So ए से लेकर 1 से लेकर 5 तक सेट सिलेबस है, कोई चेंज नहीं होता. सिंपल क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते हैं, कभी कभार कभी नहीं आते हैं. इट्स जस्ट एमसीक्यूज एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स, वेरी इजी. एक्सरसाइज 6 जो है, दैट इज गोना बी अ लिटिल प्रॉब्लम, बिकॉज में आर्टिकल, रिपोर्ट, ऐसे और रिव्यू में से कुछ भी आ सकता है. एक बात, एनीवन विल कम, नो चॉइस, टू रिमेंबर दिस. और obviously इसमें मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है. यस, यू कैन डू दिस. सो दिस इज इट फॉर द. अब उस पे पेपर 2 आपका लिसनिंग का होता है. Listening means you just listen and answer the question. There are almost, not almost, actually, 5 exercises that again over here, and all are almost similar. 8 to 6 marks में होते हैं सारी की सारी. One of them is 10 mark, and बस इसी में होता है. Everything is here in detail. It's not that difficult. तो मैं कुछ ज्यादा इसको पढ़ा चढ़ा के बता के आपको कंफ्यूज करके आपको इम्प्रेस करना चाहूँ. इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट इट. राइट, इट्स जस्ट सिंपल कॉम्प्रिहेंशन. यू हियर एंड यू राइट द आंसर. हाँ, ये है कि 2 दफा में आपको आंसर सुन के लिखना पड़ता है. एंड यू कैन नॉट जस्ट स्पीक हियर एंड देयर कि यार बता दो क्या होने वाला है, बिकॉज रिकॉर्डिंग आगे चल जाती है. और एक ही रिकॉर्डिंग सबके लिए चल रही होती है. इट्स नॉट दैट यू गेट अ सेपरेट हेडफोन फॉर योर रिकॉर्डिंग, सब प्लेबैक कर सके. अ, अब जो सबसे जरूरी चीज है वो है मार्किंग. भाई, मार्किंग को समझना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोच कर आते हैं कि यार हम जो है इंग्लिश सही कर ग्रेड लाना है, कोई मसला ही नहीं है. और पेपर 1 की जो मार्किंग छोड़ दो, मैं बता दो. मैं आऊंगा पेपर 2 की मार्किंग पे डायरेक्ट. आई एम गोना डिस्कस द सेम क्राइटेरिया इज फॉर 0500 एज वेल. तो ये सेम ही है बिल्कुल. लेट्स डिस्कस द मार्किंग फॉर ऑल दोज हु थिंक यार मार्क किस चीज से मिलते हैं यार, इतना मुश्किल लेटर आएगा, आर्टिकल, स्पीच, ईमेल, रिपोर्ट, ब्ला ब्ला. चलो कॉम्प्रिहेंशन में तो ये ना, यू राइट द राइट आंसर, यू गेट द आंसर. अगर यू राइट द रॉन्ग आंसर, यू डोंट गेट द मार्क्स. इज एज सिंपल एज दैट. समरी में थोड़ा हेयर एंड देयर कंटेंट के नंबर मिल जाएंगे. बट मोर 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 लेस जो पेपर 1 रीडिंग का होता है, इट्स मोर लाइक अ मैथ. इधर यू गेट द मार्क्स और यू डोंट गेट द मार्क्स. इज नॉट इन इन बिटवीन. ये इन बिटवीन वाला पार्ट यहाँ शुरू होता है भाई. Can we give one paper of IGC, if English of IG? Yes, you can do that. Yes, you can do that. You can give one paper of IGCSE and give the remaining papers of one of O levels. कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, बट इसके क्या consequences है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. Yeah, you get equivalency, no problem. अब मैं आपको, अगर ये आपको समझ में आए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. Because I have to keep these things with me, unfortunately. CAI का है. Avoid my, you know. You see over here, this is an equivalency certificate of a student of mine. If you see over here, this chap gave um, Cambridge International Examinations and Pearson Edison Information. इसकी equivalency बनी हुई है because half of his papers were Cambridge based and half of of some of them were Pearson based. एडेक्सल. अब कैम्ब्रिज के अंदर ही आता है ओ लेवल्स और आईजीसीएसई. यहाँ तो उसने कैम्ब्रिज के बाहर के पेपर दे दिए, यानी कि एडेक्सल इज एन अदर बोर्ड. कैम्ब्रिज बोर्ड है, एडेक्सल बोर्ड है, ऑक्सफोर्ड का बोर्ड है, एक्यू है. एडेक्स कैम्ब्रिज एडेक्स इसका एडेक्सल जो है पीएसएन वालों का है. एक ऑक्सफोर्ड वालों का एक्यू है. देन देयर इज एलआरएन एज वेल. देयर 4 separate boards, and each board may have varieties inside it as well. So IGCSE and O levels are 2 different varieties of Cambridge board. और फिर उसमें भी आईजीसीसी में फर्स्ट लैंग्वेज भी है, सेकंड लैंग्वेज है. वो दे आर फर्दर वेराइटीज, सब वेराइटीज आ गई उनकी. सो यस, इट इज इंचेंजेबल. फॉर अब मैं पाकिस्तान में रहने के लिए और बाहर जाने दोनों की बात करूंगा. लेट मी गेट विद दिस थिंग एंड देन आई विल डिस्कस द, ऑल्दो आई डिस्कस दिस बिफोर एज वेल लास्ट क्लास, आई नो आई हैव टू डिस्कस दिस फॉर अनदर फ्यू टाइम्स, फ्यू डेज, बिकॉज नए नए बच्चे आ रहे हैं मुस्तकिल. फॉर दैट पर्पज आई विल डू इट. आई टोल्ड यू कि whenever you get marks for reading, समझ लो आपकी छक्का लग गया. ये रीडिंग का मतलब होता है बेसिकली कंटेंट.
यानी कि फ्रॉम ऑल दोज टेक्स्ट, टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी जो आपको दिया हुआ है, उनसे अगर आपने सारे के सारे पॉइंट्स निकाल लिए, जितने पॉइंट्स सब निकाल लिए, आपकी जिंदगी अच्छी हो गई भाई, मुबारक। यू कैन, एंड इफ यू मिस आउट सम पॉइंट्स देन यू आर इन ट्रबल। ये बात याद रखिएगा। So make sure that all the points have to be extracted to ensure that your life becomes an easy peasy one. Yeah, maximum is the same. उसमें मसला नहीं है, maximum में कोई टेंशन नहीं है। When it comes to your writing, now this is where things get complicated and I want to discuss this especially. ये मेरा आज का, समझ लो आज जो मैं सब कुछ अब तक पढ़ाया है वो पढ़ाई इसलिए कि यहाँ तक मैं आकर आपको बता सकूं। A lot of you who come to study English are under the impression that only if we get through this here and there, you know, थोड़ा सा ग्रामर अच्छी कर लेंगे, थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर लेंगे, and we will do well in life इंशाल्लाह ताला। And you don't know what marking is done upon. There are things that are not in your wildest dreams, and that is a huge issue because students and teachers, they don't discuss the marking criteria for the of O levels English language. Now, the first, अच्छा अब आप ये जरा देखें, गोरे को समझिएगा, because obviously I work with them, so I know how their brain works, right? पेपर है राइटिंग का, ठीक है, दिस इज अ राइटिंग पेपर, एंड इसने पहले यहाँ पे लिखा है रीडिंग के मार्क्स दिए हैं। क्यों? अरे सर क्या मतलब, इतनी कोई बारीकी कौन देखता है, ऐसे ही लिख दिए होंगे उसने, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अच्छा, मैंने एज इट इज छापा हुआ है सारा फ्रॉम द मार्क्स स्कीम एंड द सिलेबस, आई हैव नॉट, दिस इज नॉट माय ओन वर्क, राइट? So this tells me that for them this is the priority के भाई कंटेंट, यानी कि जो आप अपनी राइटिंग लिखेंगे उसमें टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी, इन दोनों का कितना कंटेंट मौजूद है, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू देम। अब आप देखें इसका मतलब क्या है, इफ योर रीडिंग इज पुअर, आप राइटिंग के पेपर में भी आप सफर करेंगे। दिस टेल्स मी दिस। सो ऑल दोज हु थिंक यार राइटिंग पेपर में हम निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं, रीडिंग खराब है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, अबे खैर हो गई, पेपर टू अच्छा, पेपर अच्छा कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आई हैव टोल्ड यू ओनली वन क्वेश्चन इन द एंटायर पेपर, वहां पे कितने हो गए, वहां पे हो गए 4 हो गए, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन ही है दोनों में, तो टोटल 6 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक ओ लेवल्स के अंदर, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो, चाहे वो आई 1 1 2 3 ओ लेवल्स हो। आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चन, ओनली ऐसे क्वेश्चन इज द क्वेश्चन वे यू डू नॉट रिक्वायर रीडिंग, बाकी सब में रीडिंग चाहिए होगी आपको। सो इफ यू आर पुअर एट रीडिंग बच्चों, यू गॉन। तो पहली बात ये समझिएगा कि द फर्स्ट थिंग ही हैज मेंशन्ड ओवर हियर इज रीडिंग या कंटेंट व्हिच टेल्स मी दैट दैट इज देयर प्रायोरिटी। देन कम्स द राइटिंग पार्ट, कि भाई राइटिंग पे, अब राइटिंग में हम आते हैं तो बोलते हैं हाँ सही है यार, अच्छी इंग्लिश लिखनी होगी, ग्रामर मेरी सही हो, मेरी वोकैबुलरी सही हो, तो सर मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है तो क्या होगा। Nobody discusses the things that are mentioned in the mark scheme. क्या लिखा हुआ है? The first thing, the top priority thing is there, the content is complex, well developed and effective. ये जब लिख पढ़े ना वो, तो ऐसा लगे कि किसी क्लास 11th या 10th के बच्चे, वो उसके बच्चे ने लिखा है, क्लास 2 या 3 के बच्चे ने नहीं लिखा हुआ। सो आप पास पेपर करवाएंगे, पास पेपर को करवाता है यार, कोई टीचर करवाता है? मैं यार क्यों नहीं करवाऊँ, कैसे सवाल पूछ रहे हो? Concentrate what I'm saying over here. Stop with the chat. Then it comes well organized. Number two, the first thing उसकी ये है कि भाई तुम्हारी राइटिंग पढ़ के लगे मुझे भाई कि भाई किसी बड़े बच्चे ने लिखा है, कोई टुच्चा नहीं लिख रहा। The second thing is that organized structure that assimilates ideas. आपको जो टेक्स्ट है, जो आपके टेक्स्ट दिए हुए उसने आपको, चाहे वो एक हो और दो, दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, उससे जो चीजें ली हैं उनको आप सही जगह पे ऑर्गेनाइज कर पाए। ये जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट विल ऑलवेज गो इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर।
और लास्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट बी इज गोइंग टू बी इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर। हो सकता है द टेक्स्ट बी का लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है वो पैराग्राफ वन में आ जाए। सो डू यू हैव दैट सेंस टू अंडरस्टैंड कि टू असिमुलेट आइडियाज कि ये कौन सी चीज कहाँ जाएगी। इस पे नंबर मिलेंगे आपको, इस पर कोई बात नहीं करेगा आपसे। फिर आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर। आपके सेंटेंसेस कैसे हैं, और आपके क्या सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि लग रहा है कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि यू विल हैव टू मेक लेंदी सेंटेंसेस विद अ लॉट ऑफ वैरायटी। छोटे छोटे सेंटेंस लिखने अगर आदत है तो गए आप। कोई बात करता है इस पे? कभी नहीं करेगा। वो चीज जिसपे दुनिया की सब बच्चे की दिमाग जो जान खाई रहती है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी खराब है, वोकेबलरी खराब है, वोकेबलरी खराब है। Out of these one, two, three, four, five, six things over here, and one and two, eight, total eight चीजें हैं जिसपे आपको मार्क्स मिलते हैं। Out of the eight things, only one is vocabulary, which tells me that if let's suppose my vocabulary is average, I can still get good marks. Because if out of these eight things, seven things I do extremely well, and my vocabulary is a little okayish, I don't need to worry about it. ये लंबे लंबे वर्ड्स की लिस्ट दी हुई होती है, याद कर लो, ये भी 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 याद कर लो। वो भाई याद करना एंड एक्वायर करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ योर वोकैबुलरी इज गुड, फाइन, बट देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स देन दैट, वी विल कम टू इट। ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट उसको लेके हवा नहीं बनाओ। हवा बनानी चीज ऊपर है। फिर आते हैं नंबर 5, टोन एंड रजिस्टर फॉर ऑडियंस एंड पर्पस। टोन, टोन के बारे में सबको पता है क्या होती है, वो टोन सही करो अपनी। रजिस्टर के बारे में पता ही नहीं है। रजिस्टर क्या होता है? सर उस पे हम लिख रहे हैं, probably that's a register. No, in register in English or in a language means the usage of appropriate vocabulary in the appropriate situation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो लैंग्वेज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो दोस्तों में इस्तेमाल नहीं करते, और जो दोस्तों में इस्तेमाल करते हैं वो तो घर में इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि जो दोस्त जिस तरह चाय के होटल पे बैठ के बातें करते हैं, दे विल नेवर स्पीक द सेम वे एट होम। मतलब घर में, एंड यू नो आपका मतलब क्या, मतलब आप दोस्त को बोलते हैं यार जिगर किधर, वो बुरा नहीं मानेगा। घर में उसके अब्बा बोला हाँ जिगर किधर, फिर पता चलेगा किधर गए आप। दोस्त को बोलते हैं यार जानी पानी पिला दे, घर में उसको अम्मा को बोलो। मेरे कोई करीबी दोस्त हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े दोस्त टीचर्स मेरे दोस्त हैं। कोई आएगा मैं बोलूंगा हाँ जी बैठे, खाना खाइए। बोले भाई क्या हो गया दादी, खाइए दे तबीयत ठीक है। आज तो बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो, तमीज से बात कर रहे हो। वही कोई कराची का बड़ा 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 टीचर आए मुझसे सीनियर जो है बहुत सारे, मैं उनको बोलूंगा आए सर फोड़े खाना, मेरा करियर फुट जाएगा पूरी जिंदगी भर का। और वही बात मैं बोलूँ अपने दोस्त को, हाँ भाई फोड़ो मुफ्ता है, बोले हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह है, मंगा दे, थैंक यू सो मच यार। वो इट ही विल बी सो प्राउड ऑफ ईटिंग दैट फूड बिकॉज आई नो। नाउ आई गिव यू अ मोर sophisticated example. Imagine writing letter to your principal and a letter to your popo, and you swap the first the paragraphs, the first paragraph. आप प्रिंसिपल को लिख देते हैं, डियर मैम, हाउ आर यू डूइंग, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव heard from you, was missing you from the bottom of my heart. The last time I saw you was in the wedding, and since then we have not been able to talk much. उसके बाद आपका क्या होगा अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही। मतलब प्रिंसिपल को तो बोलिए माहौल ही लौंडे ने चेंज कर दिया भाई पूरा। बट डिड आई कमिट एनी ग्रामेटिकल एरर? यस और नो, चैट में बताओ। मेरे फर्स्ट पैराग्राफ में कोई ग्रामेटिकल एरर था? नो। क्या मैंने उसमें कोई मैंने स्ट्रक्चर की गलती करी? नो। मैंने कोई स्पेलिंग गलती करी? नो। बट स्टिल यू से सर व्हाट द हेल आर यू राइटिंग सर, क्या लिख रहे हैं आप ये? और वही आप उसको स्वैप कर दें विद योर पप्पो। जो प्रिंसिपल को लिखना था आप बोल पप्पो को लिख दें, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू टू अटेंड माई बर्थडे, प्लीज डू कम एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। अम्मी का फोन आएगा, तमीज नहीं सिखाई।
सलाम दुआ कर ले पहले। इनके फुप्पा स्कूटर से गिर गए थे, उनकी तबीयत नहीं पूछती, बस अपनी बात की बात करी और खत्म। नहीं आ रहे, रिश्ता खत्म, आज से हम तुमसे नहीं मिलेंगे। So you see, the vocab, the register is so important. You need to know, and the examiner says कि भाई when you are writing an informal letter, you need to be informal. हाँ, बच्चे कुछ ज्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं। वो समझते हैं दो चाय के होटल में बैठ के बातें कर रहे हैं, और हमें पता है दो दोस्त चाय के होटल में बैठ के ऐसी बातें करते हैं। खैर, so it's not like that. You can be informal, but they know, they need, and they require from you कि भाई when you are writing a formal letter, stay formal. When you're writing informal, stay informal, obviously in the boundaries. तो ये, अब सोचो इतनी इंपॉर्टेंट बात है और ये लिखी हुई है, पता ही नहीं हमें। फिर आती है लास्ट पॉइंट। अच्छा भाई ये देख लो, सबको मिटा रहा हूं। ये है 8 पॉइंट्स, 1 2, ये मेरे हिसाब से इनकी प्रायोरिटी लिस्ट है। 4 5 6 7 8। 8 पॉइंट में क्या लिख बोलता है, सबसे आखिरी चीज, एक्यूरेट यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग। स्पेलिंग नहीं, कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, एंड हमारी सबसे प्यारी चीज जिंदगी की, ग्रामर। मतलब ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। और ग्रामर का नाम कहां पे आ रहा है, हमारे दिल में, तो दिल पे लिखा हुआ है। इट्स लाइक एम्बोल्ड ऑन अ हार्ट। हाँ, वी स्टार्ट आवर इंग्लिश विद ग्रामर एंड विल एंड आवर लाइफ विद इंग्लिश ग्रामर। वो बोलता है बेटा ये आखिरी चीज है, 8 पॉइंट की आखिरी चीज है। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये है। बताऊं क्यों? ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आप खुश नहीं हो, ये लाडी इंग्लिश खराब है हमारी तो द हेल विद इट, अब तो इंग्लिश से जान छुड़ गई, नहीं। चंदा, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट इफ योर इंग्लिश इज गुड एंड यू एम प्लानिंग टू गेट मार्क्स ऑन योर गुड ग्रामर, द एग्जामिनर सेज घंटा। बोलो बेटा इंग्लिश क्लास 11th में आके इंग्लिश आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। इसकी इस पे लेके कौन सा तुम खुश हो रहे हो? ये तो मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी आइटम है। आगे तो ये बेसिकली, इफ यू स्टे सी दिस प्रायोरिटी लिस्ट, ये अपवर्ड्स जा रही है इन द डिफिकल्टी लेवल। सो वेयर डू यू स्टैंड? इज योर ग्रामर गुड? फाइन, देन यू कैन ग्रेजुएट टू पंक्चुएशन। इज द गो गुड, फिर इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ गए तो इस पे आ जाओ, सही है, इस पे आ जाओ, फिर इस पे आ जाओ। So you move from this point to 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 this point. And I'm talking about both the parties, 1123 भी, 0510 भी। और इसी तरह मैं पढ़ाऊंगा, सॉरी, 1123 और 0500 दोनों को। एंड फॉर 0510 स्टूडेंट्स टिल दिसंबर, लाइक इट और डोंट लाइक इट, नॉट लाइक इट, आई विल टीच यू ऑन द सेम पर्सपेक्टिव। पेपर में ग्रेड आ जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ऐसा वीआईपी किस्म का रगड़ा देना ना आपको कि आप बोले हाँ यार इंग्लिश पढ़ी थी किसी से। दिस इज हाउ इट्स सपोज टू गोइंग टू बी। As when it comes to the 0510 as well, you don't need to worry about सभी को ऐसी, there aren't very out of the world thing that you need to worry about। वही बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, उसी की बात करता है गोरा हमेशा हर जगह पे खड़े होकर। और सी, इट जस्ट सेज मार्किंग क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है आपका। टास्क फुलफिलमेंट आपको होना चाहिए, कंटेंट रेलेवेंट हो, ऑब्वियस सवाल जो पूछो उसके बारे में बात करें, अप्रोप्रिएट स्टाइल हो, टेक्स्ट टाइप आपका अप्रोप्रिएट हो। टेक्स्ट टाइप का मतलब वो क्या होता है कि अगर वो आपसे बोल रहा है स्पीच करो तो आपको स्पीच की तरह लिखना है, अगर वो बोल रहा है आर्टिकल पढ़ो तो आर्टिकल की तरह लिखना है, अगर वो बोलता है लेटर करो तो लेटर की तरह लिखना है। यू हैव नीड टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ दीज टेक्स्ट टाइप्स। सो यू, ऐसा नहीं है कि हर तरह हर जगह मैं लेटर की तरह लिख के आ जाऊं हर चीज को, डियर सर से स्टार्ट करके। यू नीड टू नो द फॉर्मेट्स एंड द वे यू स्टार्ट अ पैराग्राफ। सर यू आर नंबर वन इन माय हार्ट, सर यू आर नंबर वन इन माय लंग्स। सो excellent sense of purpose and audience। ठीक है, सो आप जो है ना, मतलब इसमें बेसिक कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आराम से निकल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक। जो मुश्किल चीजें ना उन पे मैं लंबी कर रहा हूँ उनको, आसान चीजें उनको मैं ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। सो सो डोंट वरी अबाउट इट।
असल पार्ट था आपको एक ओवरव्यू देना। जब आहिस्ता आहिस्ता हम पास पेपर्स पे आएंगे तो समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि कल से हम लोग अपना ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टॉपिक ग्रामर का जो हमारा होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, उस पर हम बात करना शुरू कर देंगे। अब मुझे बताइए आप में से, इफ देयर इज इट फॉर टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द syllabi and the marking criteria, and in a obviously in a hurry, not in detail, but as the lecture, the course will go on and on and on and on, you will see that you'll understand the entire syllabus in a much better way. I will be discussing each and everything in a lot of detail.